Very good morning, students. Hi, hello. How are you? I know you are all very fine and having a great time and enjoying your lockdown in your home. So now let us start studying. Okay? Yes. So today we will be starting our new lab chapter. That the name of the chapter is very important. Do not forget it. That you have already learned in your 8th standard, 9th standard, 10th standard, 11th standard, and now it also again in 10th, 12th standard. What is the name of the chapter? It is electricity. Actually, it is current electricity. Current means what? That what is going on, and electricity means what? The electrons that are under motion. Now you students, you have learned actually electrostatics. What you have learned just before now, you have learned electrostatics, but now you, this is the new chapter, and this is electrodynamics. It is not electrostatics. In the lessons up till now, the charge was getting stored, charge was standing somewhere, the charge was static. But now in this lesson we will be learning all those things when the charge is actually in motion. Whenever the charge is in motion, whatever things has happened around it, okay, inside the wire, that we will call this as current electricity, and all the phenomena related to it we will be learning in this lesson. This is called as what? Current electricity. Clear, students? Okay, so let us move on to the next part. Students, we will be dealing with these important points in this lesson. Basically, we will be learning the definition of electric current. It will be associated with the average current density, the average value of current, the instantaneous value of current, the drift speed, the microscopic Ohm's law also. What is that? We will be learning the microscopic Ohm's law. You must have heard about Ohm's law in 10th standard. है ना? In 10th standard, student, what will we learn? We learned about what is current. है ना? We learned what is charge, current. Then we learned the formula of deriving. Yes, the series and parallel combination of currents. The series parallel combination of currents we learned. है ना? Yes. Furthermore, what did we see? उसके बाद में हमने क्या देखा था, है ना? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा था, है ना? उसके बाद में हमने सभी सिम्बॉल्स देखे थे, क्या क्या है, रेजिस्टर्स वगैरह. फिर हमने पावर के बारे में पढ़ा. पावर हम लोग बोल रहे थे, है. मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर चेतन और ऋग्वेद, रुद्रतेज, यू आर ऑल देयर इन द क्लास. यस, सो ऑल वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स. ये टाइम ये हम अलग से किरचॉफ्स लॉ सीखने वाले हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले, क्योंकि आप अभी बड़े हो चुके हो. तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट रहते हैं, अलग अलग रजिस्टर साथ रहते हैं, तो उनको सॉल्व करने का एक टेक्निक है जो किरचॉफ्स लॉ, जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, है ना. किरचॉफ केवीएल केसीएल लेके हमने कैपेसिटर्स के वैल्यू पढ़े थे, है ना. किरचॉफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क हमने पढ़ा था, है ना. उससे हमें प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो चुके थे, वो हमने पढ़े थे. तो ऐसे ही हम पूरा अभी डिटेल में जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले. इसके साथ आपके साथ इसमें एक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा है. ओम्स लॉ, मोबिलिटी एक पॉइंट है, ड्रिफ्ट स्पीड एक कुछ नया पॉइंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी एक नया पॉइंट है एक लेसन में, और इसका भी कॉम्बिनेशन है. ओके, सो चलते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी there with us in this chapter. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे ना. ये सभी तैयार है? तो देखो क्या करते हैं, पहले हम कंडक्टर लेते हैं. क्या लेते हैं? कंडक्टर लेते हैं, और उसके ऊपर देखते हैं कि क्या चलते रहता है ना. यस, तो स्टूडेंट्स मेरे को बताओ, क्या आपने कभी पानी की टाकी देखी है? हाँ, देखी है. कैसे होती है वो? कुछ ऐसे, है ना. यस, उसमें क्या होता है? पानी की टाकी में क्या होता है? करेक्ट, क्या होता है? पानी. ओके, अब हम क्या करेंगे, उसके नीचे पाइप लगाएंगे. क्या लगाएंगे? पाइप में क्या होता है? यस, पानी क्या होता है? बहने लगता है. जब पानी ऐसे बहने लगता है, अगर आप बीच में पत्थर डालोगे तो क्या होगा? पानी का स्पीड कम होगा. द फ्लो ऑफ द वाटर विल गेट रिड्यूस इफ यू ऐड स्टोन्स, इफ देयर इज रेजिस्टेंस. ठीक है नहीं? रेजिस्टेंस है ना, पत्थर डालोगे तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो फ्लो कम होगा, है ना. यस, ये क्या है? पानी की क्या है? हाइट है. ये क्या है? वाटर टैंक की क्या है? हाइट है. जितनी वाटर टैंक की हाइट ज़्यादा होगी, है ना, तो क्या होगा? अगर पत्थर भी क्यों ना हो तो वो पानी वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रहेगा, है ना. सो यू कैन एसोशिएट विद दिस थिंग्स सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ करंट. कंडक्टर में वैसे ही ये पाइप ऐसे कंसीडर करो, और बीच में जो एटम लैटिस वर्क रहता है ना, न्यूक्लियस, है ना, और जो न्यूक्लियर
एटॉमिक मटेरियल स्ट्रक्चर के बीच में जो कुछ अरेंजमेंट रहते हैं, nucleus, atomic structure, arrangement, these all constitute of these stones. Means what? For a pipe, what does stones do? They oppose the flow of water. Similarly, inside the nucleus, all the atomic particles, the arrangement of the atomic particles, these are not simple and letting go easily the flow of electrons. आपने सुना था 10th standard में कि the electric current is nothing but the flow of charge. What is current? हमने सुना था the flow of charge. The flow of charge. है ना? क्या है करंट? हमने सुना है कि एक साइड ले लो और एक साइड ले लो. ओके, सो व्हेन चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, वी से दैट करंट इज flowing from one side of the other conductor when the charge is in motion from one side to the other side of the conductor. When is the we say that current exists? Current exists when charge flows from one side of the conductor to the other side of the conductor. तो ही इसमें क्या है? करंट है. नहीं तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? एक स्फेरिकल कंडक्टर, उस पे चार्जेस क्या थे? स्टेडी थे, है ना? चार्जेस स्टेडी थे तो उसके ऊपर का फील्ड था, उसके ऊपर हमने कैपेसिटेंस देखा, उसकी वजह से मोटर चलने लगी, ज़्यादा स्पीड चलने लगी. कैपेसिटेंस की वजह से हमने इलेक्ट्रॉन को मोशन हाई स्पीड मिला आपको वैन डी ग्राफ जनरेटर में. किसी ऑल दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स सभी हमने सीखी. और यहाँ पे सभी तरफ क्या, सभी जगह पे चार्जेस स्टेडी थे, चार्जेस वर स्टेडी, दे वर रेस्टिंग, है ना? बट नाउ वी आर नॉट अलाउइंग द चार्ज टू रेस्ट. अभी अपने को चार्ज को क्या करना है? घुमाना है. चार्ज को भी काम लगाना है. ये लेसन में बहुत हो गया चार्ज का रेस्टिंग पीरियड, अभी हमको उसको काम लगाना है. तो जब भी चार्जेस मूव हो गए फ्रॉम वन साइड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर साइड ऑफ द कंडक्टर, जैसे पानी बहेगा फ्रॉम वन एंड ऑफ द पाइप टू अनदर एंड ऑफ द पाइप, तो हम क्या बोलेंगे? तो वाटर करंट्स आर फ्लोइंग, है ना? जब नदियाँ बहती है तो हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट्स आर फ्लोइंग. जब हवा चलती है तो हम क्या बोलते हैं? एयर करंट्स आर फ्लोइंग. So how is electric current flowing? When charges actually flow from one end of the wire to the other end of the wire. So how we have defining the current? Current is defined as, yes, what is the current defined as? Whenever there is a transfer of charge from one side of the conductor to the other side of the conductor, we say that there is an electric current. Okay, are you listening? You have to write this definition. Pause the video, play back again from what I have said, and again you have to write the definition. Okay, so it's good that video lectures will help you, and so that I don't have to repeat it once again. Are you listening? Yes, you are. So listen it properly once again. What is an electric current? Okay, when there is the transfer of charge from one side of the conductor to the other side of the conductor, when there is transfer of charge from one side of the conductor to the other side of the conductor, then we say that there is an electric current. The definition is over. You have to draw a simple conductor, draw two diagram, and say that the free electrons, which I have not drawn yet, just like the water molecules, these are the free electrons. These are the free electrons. Okay, they are in motion. They are in motion, and they constitute of the charge. ना, charge क्या है? वो तो हमने लास्ट लेसन में सीखा है. Whenever electron becomes free, whenever electron becomes free, the electron move from one side to the other side, है ना? इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं एक साइड से दूसरे साइड, है ना? यहाँ पे पानी क्यों मूव हो रहा है? ये साइड से ये साइड, बोलो क्यों मूव हो रहा है? इसीलिए मूव हो रहा है क्योंकि हमने वाटर का प्रेशर जनरेट किया. यहाँ पे हाइट है ना, वाटर का प्रेशर जनरेट किया हाइट से, है ना? तो यहाँ से यहाँ पानी बह रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देने पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल प्रेशर देना पड़ेगा. इलेक्ट्रिकल प्रेशर हम कैसे देते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रेशर कैसे देते हैं? यस, देखो हमने लास्ट लेसन में इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा था ना. इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आपके पास है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी हमने पढ़े थे, है ना? व्हाट आर दीस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, है ना? यहाँ पे अगर प्लस चार्जेस हो गए तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होते हैं ना ऐसे. अगर यहाँ पे मैंने एक प्लस चार्ज लिखा तो ये क्या होगा? ये प्लस और ये प्लस क्या हो गए? रिपेल हो गए. तो दिस विल ऑल्सो फॉलो द पाथ फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस. So what are field lines? The field lines are those field lines on which a positive charge would flow when placed in an electrical field. है कि ना? The path on which a positive charge will flow when placed in an electrical field is called as electrical field lines. हो गया. तो electrical field कब create होता है? तो E, अगर E है कुछ distance तक, अगर E है कुछ distance तक, तो ये point और ये दो point के बीच में क्या रहेगा? There will be potential difference. So E into D is equals to V. So what is this? E is flowing, है ना? We are allowing the water to flow in this direction. We are allowing the water to flow in this direction for this height.
सो एज मच एज द हाइट इज देयर सो विल बी द वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा हाइट रहेगी वाटर टैंक की तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा, इसीलिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है नहीं? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? यस, सो E into D is your V, E into D is your V. तो जस्ट आई एम टेलिंग यू, जस्ट एनालॉजी में पढ़ा रहा हूँ, एनालॉजी मीन्स व्हाट, जैसे पानी में हो रहा है वैसे ही यही हो रहा है, तो आपको समझने के लिए आसान जाएगा, इसीलिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको, आई बात समझ में? यस, तो E into D is your V, E into D is your V, समझ में आई बात? हाँ हाँ, तो अब हम फिर से पीछे आ जाएंगे हमारे टेक्निक में, है ना? सो व्हाट इज दिस, है ना? चार्जेस के पास क्या होती है? एनर्जी होती है ना, चार्जेस के पास एनर्जी होती है, जैसे कैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दे आर लाइक स्प्रिंग, दे आर लाइक स्प्रिंग, तो आपको क्या करना है? स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, स्प्रिंग को हाईली कंप्रेस होगा तो इसमें क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर्ड एनर्जी स्टोर होती है, जो आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, है ना? 12th स्टैंडर्ड में आपने कल लेक्चर में 2-3 लेक्चर से पहले भी पढ़ा है, तो जब चार्ज प्लेट पे एक्यूमुलेट होते हैं तो उनके पास भी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इतनी एनर्जी होती है, एंड दिस एक्ट्स लाइक व्हाट? हाफ के एक्स स्क्वायर्ड ओनली। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आते चार्जेस एक्यूमुलेट करने से, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है के, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है 1/c, ठीक है? हाँ, तो ये आप अगर जब चार्जेस एक दूसरे के पास लाते हो तो उनमें क्या होता है, जब 2 चार्जेस आप एक दूसरे के पास लाते हो तो वो रिपेल होना चाहते हैं, फिर भी आप उनको पास बुला के कहाँ पे एक्यूमुलेट करो तो उनके पास स्प्रिंग जैसे स्टोर करता है, जो दूर जाना चाहते हैं पर आप उसको स्टोर कर रहे हो, पास ला रहे हो, ये भी दूर जाना चाहते हैं पर आप उसको स्टोर कर रहे हो, तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर होती रहती है। तो अगर आपने उसको स्टोर किया कहीं जगह पे तो उनमें क्या होती है? देयर इज अ एनर्जी स्टोर, एंड व्हाट इज दिस एनर्जी? इक्वल्स टू E इक्वल्स टू व्हाट? VQ, एनर्जी, कैपिटल E इज योर एनर्जी, E फॉर एनर्जी, E को हम U कहते हैं ना, U कहते हैं, एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। व्हाट इज U? U इज इक्वल्स टू V इनटू Q, क्योंकि E को हमने ऑलरेडी इंटेंसिटी कहा है यहाँ पे, तो व्हाट इज U? U इज इक्वल्स टू V इनटू Q, आई बात समझ में? यस, सो E इज इक्वल्स टू V इनटू Q, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो नाउ इफ यू सी व्हाट इज दिस, if U is equals to V into Q, so energy on every unit of charge will be called as potential. Potential मतलब क्या? कि हर एक यूनिट चार्ज पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी स्टोर्ड है कोई 2 चार्जेस के बीच में, हर एक चार्ज के बीच में एनर्जी स्टोर्ड है, और अगर यही एनर्जी को हमने Q से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट देयर, तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगी सभी चार्जेस की। इसका मतलब यही, इसको भी मेरे को Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो E इंटू Q इज व्हाट? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस इंटू डिस्टेंस, जो कुछ एनर्जी रहेगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब EQ इंटू D में वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा प्रोसेस से भी यही हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कुछ आपने वर्क किया वो एनर्जी में स्टोर हुआ। ओके, यस, ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक हियर, दैट E दोनों साइड्स को अपने Q से डिवाइड किया, ओके, सो E into D, whatever work was done, okay, per unit charge, that got stored as potential, E into D. So potential difference if you have, then what you have to do? E into D, that is force per unit charge into distance, that is the energy per unit charge, that is the voltage. So voltage क्या होता है? Energy per unit charge, which is nothing but force per unit charge into distance, है ना? So what you are learning is that कि आपको अगर 2 पॉइंट्स के बीच में इंटेंसिटी है और कुछ डिस्टेंस दिया है तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो क्या होगा? मूव होगा, और जब भी ये मूव होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, ये सब हमने लास्ट लेसन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अभी ये हम क्यों कह रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज विल मूव, इतना ही बात आपको समझाना है। क्या समझाना है? कि जब भी आपके पास चार्ज होगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा या फिर पोटेंशियल होगा तो ये चार्ज मूव करेगा, आई बात समझ में? तो चार्ज मूव क्यों होगा? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसीलिए। जैसे यहाँ पे पानी क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे वाटर हाइट है या प्रेशर है, आई बात समझ में? आपको कौन चाहिए इलेक्ट्रिकल चार्ज को मूव करने के लिए? व्हाट यू विल रिक्वायर हियर? यू विल रिक्वायर अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, पोटेंशियल लगेगा, है ना? तो 2 वायर के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो वहाँ पे चार्जेस क्या हो गए? मूव हो गए। चार्जेस क्या हो गए?
मूव हो गए, अगर चार्जेस मूव हो गए तो आप क्या बोलोगे कि देयर एग्जिस्ट, वी से दैट देयर इज एन करंट, वी से दैट देयर इज एन करंट। जैसे पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स बहते हैं अगेंस्ट द ऑड्स, दे स्टिल फ्लो बिकॉज दे आर अंडर प्रेशर, अगेंस्ट द ऑड्स दे स्टिल फ्लो बिकॉज देयर इज सर्टेन प्रेशर। इसी को बाद में आप ओम्स लॉ में मैथमेटिकली लिख लेंगे, बाद में आपको ये देखना है, ठीक है। तो समझ लेना है कि पानी की तरह बहता है ना। अभी यही वाटर एनालॉजी से हम क्या सीखेंगे, ठीक है, यही बात हमको आगे इससे देखना है। तो देखो कुछ बातें, अगर पानी की हाइट बढ़ेगी, पानी की हाइट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, वाटर का फ्लो भी बढ़ेगा, है ना। फ्लो ऑफ वाटर विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। यस, सो सिमिलरली इफ यू हैव conductor, if you have a conductor, if you increase the potential difference, the value of current will also increase. So I is directly proportional to the applied voltage, so V equals to IR, है ना। yes, अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल पाइप्स डाले एक ही हाइट को, the height is same, the height is same, similarly if the voltage is same, the voltage is same, the voltage is same, so what will happen, flow will be getting divided. Similarly if the voltage is same, same voltage आपने अप्लाई किया, यहाँ पे भी प्लस 5 वोल्ट था, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट विल ऑल्सो गेट डिवाइड, यहाँ पे I1 I2 I3 करंट विल ऑल्सो गेट डिवाइड एज I1 I2 एंड I3। यहाँ पे देखा पानी कैसे डिवाइड हो रहा है वैसे। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट भी होगा, है ना। यस, ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है। ये जस्ट आपको एनालॉजी पढ़ा रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी 10th में कवर किया है, बेसिक्स अभी आपने लेसन स्टार्ट नहीं किया है, तो जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द लेसन जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वाटर फ्लो एनालॉजी, ठीक है। यस, स्टिल आप अभी और क्या सीखे थे 10th स्टैंडर्ड में बेसिक्स में, कि अगर जब इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, अगर आपके बीच में बहुत सारे पत्थर हैं तो क्या होगा, आई को पत्थर करंट कम होगा। अगर आई को आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ चुका है तो आपको क्या होगा, करंट को सेम ही रखना है, करंट को सेम रखना है, तो आपको वोल्टेज को फिर से बढ़ाना होगा, वोल्टेज को क्या करना होगा, फिर से बढ़ाना होगा, है ना। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे ये पैरेलल का हमने सीख चुके हैं, ओके। यहाँ भी देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, अगर आपने बीच में रास्तों में पत्थर ज़्यादा डाल दिए तो क्या होता है, यहाँ पे ये वोल्टेज है और यू हैव मोर नंबर ऑफ वायर्स। अगर ज़्यादा कंडक्टर हो गए तो ज़्यादा कंडक्टर में क्या होता है, ज़्यादा लैटिस, ज़्यादा न्यूक्लियस हो गए, ज़्यादा ऑपोजिशन मिलेगा करंट को, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, वो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस होता है अंदर वगैरह, तो फ्लो हो रहे, तो ज़्यादा न्यूक्लियस उनके सामने आएगा, ज़्यादा न्यूक्लियस उनके सामने आएगा तो फिर वो ज़्यादा ऑपोजिशन मिलेगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो ये करंट आपको अगर सेम ही रखना है, क्योंकि आपके पास अभी 3 वायर है, करंट आपको सेम रखना है, तो करंट बढ़ गया, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पानी की हाइट लेवल तो इससे बढ़ानी होगी, है ना, ठीक है। V इक्वल्स टू IR हमने पढ़ा, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट सेम नहीं रहेगा, क्यों नहीं सेम रहेगा, क्योंकि करंट को कम होना पड़ेगा। इसका मतलब आप वोल्टेज कांस्टेंट रख रहे होगे तो, पर आपको अगर करंट सेम ही रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक को जितना जितना वोल्टेज लगता है तो उसको हमने ऐड किया, टोटल वोल्टेज लेट अस टेक वी हैव इंक्रीज सच दैट इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे का वोल्टेज, यहाँ पे कुछ हाइट का पानी, यहाँ पे कुछ एनर्जी लगेगी ना इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, यहाँ पे कुछ लगेगी, यहाँ पे कुछ लगेगी, तीनों का हमने ऐड किया, V1 + V2 + V3, है ना। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल E × D, यहाँ पे कुछ E × D, यहाँ पे कुछ E × D, इंटेंसिटी अलग अलग पोटेंशियल अपने को लगेंगे, आपको ऐड किया, तो हर एक को I1 R1 I2 R2 + I3 R3, तीनों को हमने कॉमन किया था, R1 + R2 + R3, ये हुआ पूरा लगेगा I इक्वलेंट, है ना, और पूरा ब्रांच तीनों का रेजिस्टेंस R इक्वलेंट। तो हमने क्या सीखा था, ये सीरीज का फॉर्मूला सीखा था,
है ना। वैसे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले पैरेलल का दिखा, तो वैसे ही हम जो 10th में सीखे हैं वो एक्चुअली आज डिटेल में जाके हम 12th में सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट लाइक पाइप। ये है हम सब हमने ये क्यों पढ़ा है, ये सब ऐसे ही है जैसे पानी फ्लो होता है ना एक पाइप में, वैसे ये फ्लो होता है यहाँ पे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन। तो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, करंट की डेफिनेशन लिख ली है ना, तो लिखो एवरेज करंट। करंट की डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज एवरेज करंट? ओके, एक अगर कंडक्टर है यहाँ पे और अपने अपन अपने घड़ी ली और मेजर किया क्लॉक को, इतना समय ले रहा है यहाँ से यहाँ तक का। सो इन गिवन टाइम डेल्टा टी में यहाँ से यहाँ पे कुछ चार्जेस आपको यहाँ पे दिखे थे, फिर वही चार्जेस आपको यहाँ पे दिख गए। तो चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन साइड टू द अदर है। कितने चार्जेस मूव हो गए? डेल्टा क्यू इतने चार्जेस मूव हो गए। सो इफ यहाँ से फॉर एनी क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन से अगर आप देखोगे डेल्टा क्यू चार्जेस पास across a cross section of wire in delta t time, then we call it what? I average, current average. So what is I average? I average is if delta q charges crosses an area in delta t time, we define the average electric current through time. Okay, okay. So average current is defined as delta q upon delta t if delta q charge can flow across a cross section in time duration of delta t. Okay, so I average will be getting in amperes. I average amperes में कब आएगा? जब यहाँ पे चार्ज रहेगा इन कूलम्स और टाइम रहेगा इन सेकेंड्स। आई बात समझ में? यह है एवरेज करंट की डेफिनेशन। ये आता है एवरेज करंट। करंट मतलब क्या? यू हैव अ कंडक्टर, आपके पास एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन से आपको अगर डेल्टा क्यू प्लस क्यू चार्ज निकल रहा है, कितना निकल रहा है? प्लस क्यू, तो डेल्टा क्यू चार्ज निकल रहा है कितने इंटरवल में? डेल्टा टी इंटरवल में, डेल्टा टी इंटरवल में। ठीक है, तो जब भी जितना भी ये रेशियो रहेगा उसको हम करंट बोलेंगे। सो व्हाट इज करंट? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चार्ज flowing per unit time in seconds। है ना, हर यूनिट में कितना चार्ज आपको मिलेगा बाहर आते हुए, उतना उसका क्या रहेगा? करंट। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? ये हुआ एवरेज का। फिर बाद में आता है क्या आता है? इंस्टेंटेनियस करंट आता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट
भी आपको सीखना है। इंस्टेंटेनियस मतलब हमने जब डिफरेंशिएशन सीखा था ना, जब हमने डिफरेंशिएशन सीखा था हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी पढ़े थे। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू? व्हेनेवर यू स्टडी चेंज, व्हेनेवर यू स्टडी चेंज, अब जब भी चेंज देखते हो और चेंज ग्रेजुअली हो रहा है बट हर वक्त अलग अलग है, तभी आप क्या करते हो? इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते है ना। वैसे हम क्या करेंगे अभी, क्या है तुम्हारा वायर, यहाँ पे प्लस चार्जेस है, हाई पोटेंशियल दिया यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ना। यस, करंट फ्लो हो रहा है। ओके, हाँ, हम लोग कौन से पॉइंट पे थे अभी? देखिए क्या था। सो जब यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा ना, तब स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जब ये यहाँ पे फील्ड दे रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव होता है। क्या मूव होता है? पॉजिटिव चार्ज मूव होता है। पर अभी आप देखोगे यहाँ पे अगर वाटर टैंक है तो वाटर टैंक पे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो वी से दैट वाटर करंट इज देयर, है ना, वाटर करंट इज देयर। पर अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक वाटर बॉटल है और वाटर बॉटल को मैंने ऐसे उल्टा कर दिया तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली नीचे जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब बॉटल को मैं ऐसे टेढ़े करता हूँ तो क्या होता है? यहाँ पे इंक बॉटल लेटेस्टिक, तो ये क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये वाटर बॉटल है, लेटेस्टिक वाटर बॉटल है पूरा ऐसा, तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसे ऐसे जब करता हूँ तो पानी नीचे नीचे आता है ना। तो उसका तभी समय में जब पानी नीचे जाता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली गो डाउन, क्योंकि बॉटल आप नीचे कर रहे हो, तो तभी क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे जो एक एयर बबल है जो यहाँ पे रहता है वो क्या होता है? उसकी हाइट मेंटेन करता है ना। तो अगर आप ये ऊपर लेओगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक बबल ऊपर जा रहा है, वाटर में क्या जा रहा है? एक बबल ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या? जब वाटर मूव्स डाउन द बबल मूव्स अप, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मूव्स डाउन द बबल मूव्स अप। ऐसा ही होता है एक वायर में, जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाते हैं। सी व्हाट इज बबल? बबल इज एब्सेंस ऑफ वाटर। एक बॉटल में आप देखोगे तो बबल मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ वाटर रहता है ना। तो वैसे ही अगर जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव डाउन द एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और बबल मूव्स अप। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स, लेट अस टेक, दे मूव डाउन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि बेसिकली सब न्यूट्रल रहता है, लास्ट लेसन में आपने सीखा। तो अगर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर जाएगा तब हम बोलेंगे कि ऊपर करंट जा रहा है, क्योंकि हमने क्या सीखा है? सभी चीज़ों को हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो हमने भी डिफाइन कैसे किया? पॉजिटिव चार्ज अगर कहाँ पे मूव हो रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या? हायर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव वैल्यू इज मूविंग टू लो, है ना। जब पानी बह रहा है तो क्या है? वाटर फ्लो फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, प्रेशर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। वैसे ही हमने क्या डिफाइन किया था? पॉजिटिव या ज़्यादा वैल्यूज़ से, पॉजिटिव वैल्यूज से अगर नेगेटिव वैल्यूज़ पे जा रहा है तो हम करंट बोलेंगे। पर करंट क्या होता है? करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता है। तो क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, जस्ट लाइक वाटर कमिंग डाउन द बबल्स कम अप। सो व्हेन द बबल्स कम अपवर्ड्स you say that when electrons come down, you say that when electrons come down, you say that the bubbles are coming up ना, bubbles ऊपर आ रहे हैं, electrons नीचे जा रहे हैं तो bubbles क्या होते हैं? ऊपर आते हैं। तो absence, when electrons come down, the absence of electrons moves upwards. What is the absence of electrons? The positive charge. So जब positive charge moves up, you say that direction of current is upwards. You say that direction of current is upwards. तो ऐसे ही समझना है आपको। यहाँ पे अगर मैंने निगेटिव पोटेंशियल दिया बहुत सारा, एक बैटरी लिया और यहाँ पे मैंने निगेटिव पोटेंशियल लगाया ऐसे। when electrons are moving from this side to this side, when electrons are moving from this terminal to this terminal, then absence of electron moves from this terminal to this terminal, ठीक है नहीं? Electrons are moving from this terminal to this terminal, so absence of electron moves from this terminal to
this terminal. Absence of electron moves from this terminal, है ना. When the absence of electron moves from this terminal to this terminal, you say that positive charge is moving from this terminal to this terminal. So positive charge is understood as to be moving from positive to negative. What is current? Current is nothing but what? फ्लो ऑफ चार्ज. हमने अभी पढ़ा है. तो कौन सा चार्ज? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज है ना. द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द करंट. व्हाट इज द करंट? द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया. हमने अभी एवरेज करंट पढ़ा है. व्हाट इज एवरेज करंट? इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. बट एक्चुअली इट इज हैपनिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. और पॉजिटिव चार्ज कभी मूव होता है क्या? नहीं. पॉजिटिव चार्ज जैसे बबल खुद मूव नहीं होता है, वाटर मूव होता है, इसीलिए आपको लगता है कि बबल उल्टा मूव हो रहा है. वैसे ही पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं होता. वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है. न्यूक्लियस खुद से कहाँ पे मूव नहीं होते. एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब जंप होते हैं ना, जो बैलेंस से लूज करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं ना प्रेशर की वजह से, जैसे वाटर प्रेशर की वजह से वाटर मूव होने लगे, जैसे वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल प्रेशर की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एक साइड से दूसरी साइड, वैसे हमें ऐसे लगता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव हो रहा है. और हमने क्या कहा कि पॉजिटिव डायरेक्शन को हमको हमेशा क्या कन्वेंशन क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो कुछ बहता है उसको हम नाम देते हैं. तो वैसे पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया क्योंकि वो हमें पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव है ना हमारे लिए वो. तो उसको हमने नाम दिया और उसको हमने क्या नाम दिया? करंट. तो करंट क्या है? बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. क्लियर स्टूडेंट्स? या so this was just introducing you that why positive charge is considered as the direction of current. ठीक है. हमने एवरेज हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक? सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़े, ये और ये. तो आपको आपको अब क्या पढ़ना है? आपको अब इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ना है. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट? इट इज नथिंग बट एवरेज करंट ओनली. एवरेज करंट ही होता है. ये होता है हमारा एवरेज करंट है ना. एवरेज करंट मतलब आपको टाइम ड्यूरेशन पता है कि इतना 1 बजे से 2 बजे तक है ना. अभी लेक्चर चालू होने से लेक्चर ख़त्म होने तक ये आपके पास टेलीफोन वायर है घर में या कुछ वायर है, उसके अंदर की एक अपने जगह पकड़ा है, ऐसे कुछ वायर है आपके घर में, ऐसे कुछ वायर है पड़े हुए. तो ये आपने क्रॉस सेक्शन देखा. तो लेक्चर चालू होने से लेक्चर कम होने तक 1 घंटा हुआ. तो 1 घंटे में यहाँ से कितने चार्जेस बाहर निकले? तो उसको हम बोलेंगे एवरेज करंट. उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज करंट, जहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन पता होता है. पर इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या? कि इट इज एट दैट पर्टिकुलर इन द गिवन स्पेस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना. अभी ये इंस्टेंट पे कितना इन गिवन पर्टिकुलर स्टेट, वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट पे टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है ना. टाइम ड्यूरेशन इंटरवल नहीं होता है. टाइम इंटरवल इज नॉट देयर. सो इंस्टेंटेनियस का टाइम इंटरवल इज नॉट देयर. व्हाट इज देयर? हियर टाइम इज इंस्टेंटेनियस. ओके. टाइम इज infinitesimally small. means what? for a given instant है ना. ये पल में कितना आ रहा है करंट उसमें फॉर गिवन इंस्टेंट. तो ये इसको आपको समझना है. तो आप क्या करोगे? इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस जब होते हैं तो आप डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं. तो आई इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? यही चीज़ ये एवरेज करंट. ये जब सिर्फ आपको डेल्टा टी है जो टाइम है उसको टेंडिंग टू क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा. वो बहुत बहुत स्मॉल होगा है ना. टेंडिंग टू 0 मतलब क्या? उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू होती ही नहीं है. पर सिर्फ आपको उसका मेजर करना है, उसके चेंज इन करंट. उसको सिर्फ क्या करना है? वो होता है आपको जस्ट टेंड टू मेक इट 0 है ना. आपको क्या करना है? उसको चलाना है. पर कैसे? जस्ट दैट एट दैट मोमेंट वो कितना दे सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि एट पल में आपको कितना वहाँ पे करंट है. तो एक्चुअली आपके पास ड्यूरेशन है, तो चार्ज बाहर ही कैसे आएगा आप बोलोगे? क्योंकि चार्ज कंटिन्यूसली बह रहा है. हम क्या करेंगे? वो पल या एट दैट इंस्टेंट यू हैव टू टेक टाइम
टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी वेरी, इट इज़ निग्लिजिबल टाइम, टाइम को आपको जीरो नहीं कर सकते आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसिडर दैट व्हाट इज द, इफ टाइम इज टेंडिंग टू जीरो, अगर वो जाना चाहता है तो उसमें करंट कितना फ्लो होगा, और वॉट एवर इज द, इफ द टाइम टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट जस्ट इफ इट वुड टेंड to increase or decrease at that moment, then whatever is the change that is observed, that will be its ratio with that time, that will be the current. Okay, so it's nothing but differentiation, that is what, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq by dt लिख सकते हैं, so that is your current. So I equals dq by dt, this is your instantaneous current. ठीक है, आपको अगर चार्ज का रिलेशनशिप पता है, चार्ज का रिलेशनशिप पता है, तो आप करंट भी निकाल सकते हैं. I is equals to what, dq by dt. If somebody tells you q equals to 4t square plus 3t है, so find instantaneous current, find at t equals to 2 seconds. तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको अभी पता चला है I is equals to what, dq by dt है ना, तो आप d dt ऑफ क्या करोगे, 4t स्क्वायर प्लस 3t करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 8t प्लस 3 है ना, यस. अभी t की वैल्यू पुट करो एट 2 सेकेंड्स है ना, तो 8 इंटू 16 प्लस 3 19 एम्पियर्स विल बी द आंसर. Yes, 19 amperes will be the answer. So what is the current flowing in the circuit? It will be 19 amperes. 9. Yes. ओके, तो इंस्टेंटेनियस करंट पे आपको पता चला. ओके, अभी आप देखेंगे करंट डेंसिटी. So what is current density, students? So current density is defined as J. J is equals to what? Di by डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, डेल्टा आई बाई डेल्टा एस है ना. एक वायर है ऐसे, तो ये वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ वायर, अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे, तो गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में आई की वैल्यू ये डेल्टा एस है. डेल्टा एस क्या है, एरिया वेक्टर है. क्या है, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर आपको पता है, एरिया को परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन निकाल के जितना बड़ा एरिया उतना आप एरिया वेक्टर को पहचानते हो, है ना. ये ज़्यादा रहेगा बड़ा एरिया, तो एरिया वेक्टर की लाइन ज़्यादा बड़ी होगी, और इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर पे. तो एरिया वेक्टर, वो गिवन एरिया वेक्टर ये है. अगर उसमें से क्यू चार्जेस जा रहे हैं बाहर, कितने चार्जेस जा रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस आर फ्लोइंग, let us take I amount of current is flowing, and I amount of current is flowing. What is I, delta Q by delta T only ना, let us take. तो अगर डेल्टा I इतना करंट उसमें से जा रहा है, तो करंट पर यूनिट गिवन एरिया, करंट पर यूनिट गिवन एरिया है ना, इज ऑल्सो अ कांस्टेंट है ना. तो यहाँ पे नेचर में क्या ऑब्जर्व होता है कि दिया हुआ अगर होगा एरिया, तो वहाँ पे से करंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है. नॉट एवरी टाइम, बट इट इज कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट. सो वो कांस्टेंट पे आपको भी आपको डिफाइन किया है, दैट इज व्हाट करंट डेंसिटी. सो व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डिफाइंड डेंसिटी इज व्हाट, दैट यस देखा. सो व्हाट इज करंट डेंसिटी, ये भी जे एवरेज है, और वैसे ही आपको करंट डेंसिटी आपको इंस्टेंटेनियस भी मिल सकती है. कैसे, डी आई बाय डी एस, डी आई बाय डी एस, ये है एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज करंट डेंसिटी, ये है इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी. तो आपको पहले हेडिंग दे दिया था, तो हेडिंग लिख लो, एवरेज करंट डेंसिटी and instantaneous current density.
है ना. व्हाट इज एवरेज करंट डेंसिटी? तो एवरेज करंट डेंसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है और उसके सामने लिखा है एवरेज करंट डेंसिटी. ये फॉर्मूला लिखना है और उसके सामने लिखना है इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी. आई बात समझ में? और ये डायग्राम आपको निकालनी है. ठीक है. और आपको लिखना है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो लिखना है. लिखो. A current density at a point P is defined as the amount of current flowing through a perpendicular area vector is called as current density. What is current density? Current density through a point P is called as the amount of current flowing through a perpendicular area vector in a given conductor. ये हुआ आपका एवरेज करंट. आई बात समझ में? ठीक है. यस. और आपको कुछ चीज़ें लिखना है. वैसे ही आप इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट एट इन्फिनिटेसिमल टाइम. ओके. फॉर इंस्टेंटेनियस अमाउंट ऑफ टाइम और फॉर गिवन इंस्टेंट द करंट डेंसिटी इज गिवन बाय di/dx. पर अगर आपको दिया जाए कि ये प्लेट जो है वो बेंड है, तो एरिया वेक्टर क्या है? बेंड है. एरिया वेक्टर अगर बेंड है तो आपने क्या सीखा है अभी थोड़ी देर पहले? दैट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, है ना. तो आपको क्या लिख सकते हो? J बार डॉट डेल्टा S बार इज इक्वल टू करंट, है ना. गिवन एरिया ऐसे अगर होता है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होता है डेल्टा S. और चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं? चार्जेस तो ऐसे फ्लो होते हैं, है ना. डेल्टा Q यहाँ पे आ रहा है, डेल्टा S यहाँ पे, डेल्टा Q बाई डेल्टा I लेट अस टेक. I यहाँ पे फ्लो हो रहा है और डेल्टा S यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना. यहाँ पे तो हम क्या डिफाइन करते हैं? करंट डेंसिटी को हमने डिफाइन किया कि I अपॉन डेल्टा S. और जो कुछ यहाँ पे है द क्लोजनेस एसोसिएटेड हियर इज व्हाट? द करंट डेंसिटी. यहाँ पे क्लोजनेस है कुछ, हाँ यहाँ पे क्लोजनेस कम है तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कम है. यहाँ पे अगर क्लोजनेस ज़्यादा है तो करंट डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो द क्लोजनेस एसोसिएटेड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगेन क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि करंट तो वेक्टर नहीं है पर एरिया वेक्टर है ना. तो एनी स्केलर डिवाइडेड बाय एनी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसलिए करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. बट करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर, है ना. करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर, ये दोनों का आपने अगर प्रोडक्ट किया तो दैट विल बी योर करंट. एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, फिर भी उसको डायरेक्शन है. अगर उसको डायरेक्शन है फिर भी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि वो वेक्टरली ऐड नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता. इसके लिए हम करंट को वेक्टर नहीं बोलेंगे. आई बात समझ में? यहाँ पे आपको क्या लिखना है? द करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, बट इट्स स्टिल अ स्केलर क्वांटिटी. It has direction but it does not follow the vector addition law. It has direction but it does not follow the vector addition law. ये भी आपको वहाँ पे लिखना है. यही बात समझ में? यस. तो ये लिखो आपको करंट डेंसिटी में ये लिखना है आपको. यस.
और अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपको क्या होता है, एंगल को लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको एंगल भी लिखना है। आपको एंगल यहाँ पे लिखना है, दिस इज थीटा। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ जे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख लो, ये आपका करंट एमसीसी। एक बात समझ में, यस, वेरी गुड। तो ये होता है अपना करंट डेंसिटी एंड दिस इज अवर प्रॉब्लम, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी वेक्टर दोनों कॉस जीरो रहेगा तब आंसर ज़्यादा रहेगा। तो अगर ज़्यादा करंट आपको फ्लो होना है तो वायर कैसे, करंट यहाँ मूव हो रही है और वायर ऐसे हो रही है, तो करंट क्या होगा, नहीं आएगा। वायर भी, करंट भी ऐसे मूव हो रहा है और प्लेट भी ऐसे ही है, पैरेलल है, तो करंट ज़्यादा मूव हो सकता है। तो इफ यू वांट द मोर वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होनी चाहिए तो कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। कॉस थीटा अगर इक्वल टू 1 होना चाहिए तो क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, कि थीटा 0 होगा, तो मतलब थीटा कब 0 होगा, इट इज एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी, अंडरस्टूड ना। वैसे होता है, करंट डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट इन दैट गिवन वायर, है ना। एक वायर में वो कांस्टेंट रहता है, क्या होता है उसका नेचर की, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर एरिया द अमाउंट ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग कांस्टेंट। तो जितना एरिया वेक्टर बढ़ाओगे, बट दैट एरिया वेक्टर शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जे, जितना एरिया वेक्टर बढ़ाओगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड दैट टाइम्स with current density, the area vector will become current, will make the current to happen। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना, वेरी गुड, अपने करंट डेंसिटी समझ गए। ओके, अभी हम देखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। देखोगे ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, देखो एक सी वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ अ, आपको हेडिंग देना है ड्रिफ्ट स्पीड। देखो अगर मैंने यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड्स रखे, ऐसे पैक ऑफ कार्ड्स रखे, तो मैंने यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड से क्या, सो एक वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, एक बार पैक ऑफ कार्ड गिरे तो सभी पैक ऑफ कार्ड्स गिरने लगते हैं, है ना। उसको कुछ बोलते हैं, एक वर्ड है अच्छा, डोमिनोज करके कुछ बोलते हैं उसको। तो अगर ये एक कार्ड इसके ऊपर गिरता है तो दूसरा कार्ड इसके ऊपर गिरता है, दूसरा कार्ड इसके ऊपर गिरता है, दूसरा कार्ड इसके ऊपर गिरता है, ये इसके ऊपर गिरता है, ये इसके ऊपर गिरता है और ये इसके ऊपर गिरता है ना। या तो क्या होता है, आपको एक वेव ऐसे जाते हुए दिखते हैं आगे, वी सी सम वेव फ्लोइंग, है ना। तो ऐसे ही कुछ होता है अपने साथ वायर में, अपने साथ अपने वायर में ऐसे ही कुछ होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी छोटी क्वांटिटी है कि इधर से इधर तक आ सकता है, या हमको लगता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता है, कोयना में इलेक्ट्रॉन है, वो कोयना में पावर ऑन करने के बाद झट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है और अपने पास लाइट चालू होता है। ऐसे नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी वैल्यू है, तो इतना फास्ट लाइट की स्पीड से नहीं आ सकता। इट इज़ अ पार्टिकल, इफ इट गेट्स द स्पीड ऑफ लाइट देन यू कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट एनर्जी, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो होता क्या है, दे आर अरेंज इन दिस ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे ऑर्डर में है। आई बात समझ में, क्या होता है यहाँ पे, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को पुश करता हूँ तो क्या होता है, प्रेशर यहाँ मैंने यहाँ पे दिया, हाई प्रेशर दिया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे पुश करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक दूसरे को ऐसे पुश करेंगे। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे सरकना स्टार्ट होगा। और इन ए गिवन क्रॉस सेक्शन वायर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस एक ड्यूरेशन में चार्जेस बाहर आना चालू करेंगे और आप बोलेंगे चलो करंट मिल रहा है आपको।
करंट मतलब कुछ हो रहा है, अभी अभी चार्जेस बाहर निकल रहे हैं, दैट इज करंट हैपनिंग, है ना। पर एक्चुअली देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मूव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस साइड, व्हाई इट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस साइड द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द पॉजिटिव चार्ज इट मूव इन द ऑपोजिट साइड ना। पानी यहाँ पे मूव हो रहा है तो बबल यहाँ पे मूव हो जाता है, तो आपको क्या बोलेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट आई इज इन इट्स दिस डायरेक्शन। आई बात समझ में। हाँ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में मूव होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में मूव होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव चार्ज मूव इन दिस डायरेक्शन, सो वी से दैट करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। पर अब ये पैक ऑफ कार्ड्स जो आपने देखे हैं, तो ये पैक ऑफ कार्ड्स बहुत स्लो गिरते हैं, एकदम स्लो गिरते हैं, और आपको ये वेव बहुत फास्ट आते हुए दिखती है ना। तो आपको करंट मतलब क्या है, इट इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अगर ये वेव आगे जा रही है तो क्या हो रहा है, आपका इफेक्ट आगे जा रहा है, क्या जा रहा है, इफेक्ट आगे जा रहा है। अगर मैंने यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया तो यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहा है ना, क्योंकि सभी कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात। इसलिए करंट के डेफिनेशन में डिस्टेंस नहीं है, पर स्पीड मतलब डिस्टेंस होता है। इसलिए स्पीड किसको एसोसिएट करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट को एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना स्लो गिर सकता है इन दैट गिवन डिस्टेंस, इन दैट गिवन डिस्टेंस L/T, ओके, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे ये कितना गिरता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये वेव तो बहुत फास्ट जाती है, इतने फास्ट जाती है लाइट की स्पीड के साथ, है ना। जब भी मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पुश करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ पे बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये स्पीड बहुत फास्ट है। वैसे जब कोयना पावर स्टेशन और चुपलुन, यहाँ से मैं कोयना पे बटन ऑन करता हूँ तो चुपलुन में लाइट चालू होती है, इसका मतलब वो इतना दूर एक इंस्टेंट में आ रहा है कि करंट नहीं, वो करंट, वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, वो द करंट, द इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर्स हमने ले लिया वायर और हमने वहाँ पे स्विच ऑन किया, तो यहाँ पे स्विच ऑन हो सकता है फास्ट। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आया, उसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। मतलब क्या, वहाँ का चार्जेस उन्होंने एक क्रॉस सेक्शन से अंदर डाला तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन से उतने ही चार्जेस बाहर आ चुके हैं। आई बात समझ में। तो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है यहाँ के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे जब जितना खिसकेगा, आई यूज द वर्ड ड्रिफ्ट फॉर दैट। व्हाट इज दैट, ड्रिफ्ट। तो जो कुछ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सेकेंड, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पत्ता एक गिरेगा ना तो उसकी वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ना कि पूरे इफेक्ट। द इफेक्ट इज वेरी वेरी हाई एट वेरी वेरी हाई स्पीड। इतने हाई स्पीड से है कि इसका इफेक्ट क्या, अमेरिका टू इंडिया आप वायर लगाओगे और अमेरिका में आप स्विच करोगे यूएसए में, तो आपको यहाँ पे झट से आएगा। इसका मतलब उसका इफेक्ट या इसका वेव इफेक्ट जो डोमिनोस इफेक्ट है, वो डोमिनोस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का जल्दी आ रहा है यहाँ पे, नॉट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली ट्रैवलिंग। सो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रैवलिंग की स्पीड होती है ना, वो क्या होती है फिर, दैट इज एक्चुअली आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जिसको हम करंट समझते थे, एक्चुअली दैट इज नॉट करंट बट दैट इज एक्चुअली द ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड आपको निकालना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना पड़ेगा। तो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम, इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस, इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस। और फिर वहाँ पे उसका कुछ भी पोजीशन हो सकता है यहाँ पे। तो ये ऐसे पोजीशन होता है कि उसका नेट पोजीशन फिर से, क्योंकि कौन से डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो हम उसका नेट पोजीशन नहीं पता कर सकते। तो वो क्या करते हैं, हम कंसिडर कि कौन सी पोजीशन उसने डिस्प्लेस नहीं किया, लेटेस्ट वही पोजीशन पे वो आ गया, क्योंकि उसका नेट, क्यों वो किसी डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे कहाँ पे भी जाते रहते हैं एक कंडक्टर में, तो वो एक ही डायरेक्शन में क्यों जाएगी, जब तक हमने किसी को उसको जाने को पोटेंशियल ही नहीं दिया तो नहीं जाएगी ना। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं है। तो वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कौन से भी डायरेक्शन में जाते हैं और फिर वो उसी पोजीशन पे आते हैं। पर जब आप इस इधर हाई पोटेंशियल लगाओगे, नेगेटिव पोटेंशियल, तो क्या होगा, नेगेटिव रिपल्शन होगा, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होगा, पर ये धीरे 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 इधर तक आएगा और कुछ समय के बाद
ये धीरे 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 वाइब्रेट होके फिर से यहाँ पे जाएगा। कई बार समझ में, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दैट इज लेट अस टेक एल, ये डिस्टेंस क्या है, एल है, और इसको जाने के लिए अगर लगा टाइम टी, है ना, ये खिसकना, दिस इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब समझ आया ना, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ऐसे चला रहे हो, यहाँ पे टर्न ले रहे हो ऐसे गाड़ी, तो गाड़ी आप ऐसे ये ट्रैक पे चला रहे थे, ये ट्रैक पे चला रहे थे, पर आप टर्न क्योंकि ले रहे हो, गाड़ी आपकी इधर तक आ गई लेटेस्ट से, आप टर्न ले रहे हो ना, और टर्न आपने फास्ट ले लिया तो आपकी गाड़ी इधर आ गई लेटेस्ट से, तो फिर आपने यहाँ पे ट्रैक पे कवर आ गया, तो ट्रैक ये आपका ट्रैक है, पर आपका पार ऐसे हो गया, फिर से ये ऐसे आ गई। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज योर ड्रिफ्ट, है ना, ये हुआ आपका ड्रिफ्ट ना, टोक्यो ड्रिफ्ट आप बोलते हो। तो टोक्यो ड्रिफ्ट में क्या होता है, यही तो टोक्यो ड्रिफ्ट होता है ना, यही तो देखते हो आप और आपको मज़ा आता है और आप झूमने लगते हो, नहीं ये ड्रिफ्ट होता है, यही ड्रिफ्ट आप देख के झूमने लगते हो, है ना, हम सब, क्योंकि आपको मज़ा आता है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ये पाथ है उसका, इलेक्ट्रॉन का पाथ है क्या, रैंडम मोशन, तो क्योंकि हमने यहाँ पे टर्न किया मतलब हमने कुछ इफेक्ट डाला है, तो इलेक्ट्रॉन स्टेडीली ड्रिफ्ट है, और ये ड्रिफ्ट होते होते क्या होता है, इसका इफेक्ट, ये इसको ड्रिफ्ट करता है, उसको ड्रिफ्ट करता है, ये ड्रिफ्ट क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स साइज में, तो ये यूएसए में भी अगर होगा ये वायर, ये टर्मिनल, तो इंडिया में उसका इफेक्ट ड्रिफ्ट, उसका जो डोमिनोज इफेक्ट इंडिया में भी झट से पता चलेगा। पर ये जो ड्रिफ्ट का स्पीड है ना, ये बहुत स्लो है। स्लो कितना है, इट इज़ इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर्स, कितना है उसका रेंज, मिलीमीटर्स में है, इसका वेलोसिटी कितना है, मिलीमीटर्स में है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स। तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is in order of millimeters per second, उसका ऑर्डर मिलीमीटर, एक सेकंड में कुछ मिलीमीटर से ट्रैवल करता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में कुछ मिलीमीटर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका डोमिनोज इफेक्ट लाइट की स्पीड से भी जा सकता है। कई बार समझ में, इतना बात क्लियर है, यस, वाओ कितना मजा आ रहा है अपने। यस, तो ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, यस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में आ गया है ना, ओके। तो देखो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, आपको पता चला, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल था ना, -V माइनस था, निगेटिव पोटेंशियल था यहाँ से यहाँ तक, तो V/d, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी कांस्टेंट, है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी ना यहाँ से यहाँ तक, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे रहेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव रहते ना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक मिलेगी आपको, और इलेक्ट्रॉन के फील्ड को चिपक कर कौन जाता है, अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहाँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से कितना है, यहाँ का इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस बोलेंगे आप, -E बोलोगे, है ना, या ओके। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये भी माइनस होता है ना, माइनस हम क्या बोलेंगे, फोर्स ये डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहा है आपका, सो F इज इक्वल्स टू व्हाट, E इंटू स्मॉल e इज योर फोर्स, सो स्मॉल e इंटू E इज योर फोर्स, है ना। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, दैट इज E इंटू E अपॉन m, है ना, इसमें कुछ फोर्स आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन का मास लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट होता है, तो वो एक्सेलरेट होता है ना, गाड़ी ड्रिफ्ट होता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, स्पीड चेंज होना ही मतलब एक्सेलरेट होना, पर एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं हम, है ना, एक्सेलरेशन में हम क्या बोलते थे, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आपको टाइम निकालना है ना, तो आप टाइम को भी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्लो ड्रिफ्ट होता है। तो देखो आपने जब अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने कोलाइड होके ऐसे ऐसे जाके फिर इसने यहाँ पे आ गया, ये जो कुछ डिस्टेंस है ना, इसको आपने L कहा, बराबर है ना, ड्रिफ्ट लेंथ या ड्रिफ्ट बोलोगे आप, पर इसको जो टाइम लगेगा ना, ये टाइम यहाँ पे जो टाइम लगेगा आपको,
तो उसको हम बोलते हैं टाउ से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज कोलिजन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? एवरेज कोलिजन टाइम। ये टाउ को डिफाइन कर, जब भी आपने डायग्राम निकाला था ना थोड़ी देर पहले, ये निकाल लो, वहाँ पे ये लिख लो, एक डायग्राम निकालो, वहाँ पे थोड़ी देर पहले जो निकाल दो उसी जगह पे टाउ निकालो और लिखो यहाँ पे एवरेज कोलिजन टाइम और टाउ को डिफाइन कर दो। एवरेज कोलिजन टाइम कैसे निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है ना, यहाँ से यहाँ गया, एक पहली कोलिजन करी यहाँ पे न्यूक्लियस मिला उसको कोलाइड करके फिर से यहाँ पे आया, उसको लगा टाउ 2 टाइम, इधर से इधर गया टाउ 3, इधर आया टाउ 4, ऐसे टाउ एवरेज हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज टाउ एवरेज? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n फॉर n कोलिजन्स, तो ये होता है आपका टाउ एवरेज। तो ये भी आप लिख लो जब भी आपने थोड़ी देर पहले ये डायग्राम निकाला था तब। और लिख लो कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट द डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख लो। Yes, and delta and tau is the average collision time which is given by tau average equals to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus dot 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 tau n upon n collisions। तो n collisions के बाद ये कहाँ पे आ रहा है? इधर तक आ रहा है। तो what is this time interval? This time interval will be called as what? tau average। या सिर्फ tau, इधर से इधर तक का फॉर्मूला क्या है? tau average। या सिर्फ tau पे लिख सकते हो। tau 1 tau 2 क्या है? हर एक collision का है ना। इधर से इधर तक उसने कितना टाइम लिया? टाउ टाइम लिया। ओके, टाउ टाइम लिया। सो वी कैन राइट BD एज L अपॉन टाउ, BD एज L अपॉन टाउ। और ये जो कुछ स्पीड हो रही है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, दैट विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी टाइम इज एक्सेलरेशन। दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हर वक्त उसके लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ सकती है, हर वक्त उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो सकती है? बढ़ सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, चार्ज इज अंडर पोटेंशियल, एनर्जी दिया है उसको, है ना। तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन तभी तो जब फोर्स होता है, फोर्स होता है तभी तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड हर वक्त बढ़ते लगती है, हर वक्त बढ़ने लगती है। तो क्या होता है? कोलिजन टाइम्स, कोलिजन होते 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 उसकी स्पीड क्या होती है? खिसकने चालू होता है, खिसकते खिसकते खिसकते, क्योंकि वो एनर्जी उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, तो VD की स्पीड तक तो वो आ जाता है, VD की स्पीड तक वो आ जाता है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ये दिया है यहाँ पे a, ठीक है। तो वो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? E/m, E/m। एक बार समझ में? यस, ओके। तो ये बात मैं रब कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आया और ये अपने लिख लो। यस, सो व्हाट इज दिस लेंथ L? ये लेंथ L क्यों आएगा? दिस लेंथ इज नथिंग बट इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट, यस, द डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज कोलिजन टाइम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस, ओके, यस। तो देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक रहा है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ लेंथ कवर लेते हैं, क्यों कवर कर लिए? क्योंकि एक्सेलरेशन दिया। तो आप लेंथ का फॉर्मूला कैसे निकलते हो? काइनेमेटिकल इक्वेशन। एक चीज़ एक्सेलरेशन हो रहा है तो इफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन वी यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन, है ना। आप क्या यूज करोगे? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ a/t² अपॉन S अपॉन t बोलता हूँ यहाँ पे, और t क्या है आपका? टाइम, है ना। यस, सो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a/t²। इनिशियल वेलोसिटी आप क्या पकड़ो? उसकी 0 पकड़ो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपको दिया ही नहीं था, पोटेंशियल कुछ अप्लाई नहीं किया था, तो चालू ही नहीं किया, तो उसकी नेट डायरेक्शन नहीं थी ना कुछ, और रैंडमली आके फिर से वहीं पे आ रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसलिए सिर्फ मैं हाफ a/t² लिखता हूँ। ओके, सो S अपॉन t क्या होता है आपका? हाफ a/t²।
It is your VD. Now what is this A? This A is nothing but EE by M. This A is nothing but what? EE by M. है ना? Yes. और what is this tau? Tau is nothing but T is nothing but tau. So अब अगर आपको इसको देखना है, इसको हम बढ़िया से लिख लेते हैं यहाँ पे. It is nothing but half. एक टाइम कैंसिल, अभी फिलहाल कैंसिल नहीं करते हैं. एक ही जगह मुझे क्या लिखना है? EE by M. और यहाँ पे टाइम क्या है, कितना टाइम लेगा ये? टाउ तक लेगा ना, टाउ तक ये डिस्टेंस एल कवर कर रहा है, तो टाउ सेकेंड्स में वो करता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल टाउ सेकेंड्स का स्क्वायर अपॉन टाउ. तो आपको टाउ और एक टाउ कैंसिल हो जाएगा और आपकी कुछ इक्वेशन बनेगी यहाँ पे. ये पार्ट में रख करूँगा, ठीक है. आपकी इक्वेशन कैसे बनती है? VD इक्वल्स हाफ E टाउ अपॉन M. ठीक है स्टूडेंट्स. और अगर आप E को सेपरेट करोगे, क्योंकि इंटेंसिटी आप तो पता होती है, तो आपको ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हो आप? VD equals K into E, where what is K? K equals E tau by 2M. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है. यस. सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव लर्न. ठीक है. ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक समझना है. ये डायग्राम पहले ही निकाल चुके थे आप, है ना. ये इक्वेशन लिख रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है. बात आई समझ में? यस. अभी मैं रब कर रहा हूँ और आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है ना. एक नेक्स्ट फ्रेश पेज पे आपको कुछ लिखना है ना. क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको. दिस इज अ यूनिट वॉल्यूम. दिस इज यूनिट वॉल्यूम. इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. कंटेन्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितने भी होंगे उसको हम n बोलेंगे. हाँ. तो चलो फिर से वही चीज़ है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल देखो, -e दोगे आप तो क्या होगा? यहाँ पे जो n इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो गए? फ्रॉम दिस पार्ट, दिस लेंथ l, ये इधर तक उन्होंने ट्रेवल कर लिया है ना. ये n इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ तक वो आ गया. लेटेस्टिक उन्होंने यहाँ तक वो आ गए. ठीक है. ये n इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. चलेगा? हाँ. ओके. तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने रहते हैं? n इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो ये मैं बॉक्स को यहाँ पे निकालूंगा आज से बाहर. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यूनिट वॉल्यूम है ना. यूनिट वॉल्यूम मतलब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है ना. तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा. 1 क्यूब ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? n. हमने ये डिफाइन कर लिया. ठीक है. अभी क्या करते हैं हम? ये बॉक्स तो कुछ नहीं रहता है अंदर, है ना. तो हमने तो इमेजिन किया था, तो ये हम बॉक्स निकाल देते हैं. डायमेंशन है स्पेस के सिर्फ, ये स्पेस हमने निकाल दिया. वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में, तो ये मैं अल्रब करूँगा. सही बात समझ में? हाँ. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. पर बेसिकली क्या होता है? हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो है, यहाँ के सरफेस का, यहाँ पे सरफेस पे जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो कभी ना कभी यहाँ पे आएगा.
कभी ना कभी यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी पूरा लेंथ ऑफ कंडक्टर को स्टडी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ओके, हेडिंग क्या देना है इसको, लिखो एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। इसका हेडिंग क्या लिखना है आपको, एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। इसका हेडिंग लिखना है आपको, एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। यस, जो हमने वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये इसका हेडिंग लिख लो। या तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, क्यों आ गए, ऐसे ही आ गए क्या, नहीं, यहाँ पे आपने कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड पर यूनिट चार्ज दैट इज फोर्स, फोर्स पर यूनिट मास दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ओवर गिवन अमाउंट ऑफ टाउ टाइम हाफ अल्फा p स्क्वायर, इसी की वजह से आपको वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अभी क्या स्टूडेंट्स करना है आपने, आप हमें चार्ज करंट निकालना है, तो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एवरेज करंट निकालना है। तो डेल्टा क्यू अगर चार्जेस यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, तो आपको क्या क्या बोलना होगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग, तो व्हाट इज क्यू, क्यू इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू एन, ना, और व्हाट इज ई, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ये स्मॉल ई की वैल्यू है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा। तो इधर जितने चार्ज है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये इधर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन है, वो कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपको पता करना है। तो वो आपको अगर पता चला एन, तो आप क्या करोगे, एन इंटू ई करके आपको क्या क्या पता चलेगा, इसका ऊपर का टोटल चार्ज जो यहाँ पे आएगा इतने टाइम में, तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। सिंपल, यस, वाओ, वेरी गुड। अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स ने कितना वॉल्यूम कवर कर लिया है, द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर तक आते हैं तब हमारे पास इतना करंट आता है ना, कि करंट मतलब क्या, द इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम हाउ मच इज द इन द गिवन, ये हम वायर की पीस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बात समझ में, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो एल लेंथ कवर करके यहाँ पे आ गए हैं। तो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन्स ने एक्चुअली कितना वॉल्यूम ट्रेस किया है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पूरा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ट्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एल लेंथ के वायर को स्टडी करें तो इसका पूरा लेंथ को ट्रेस आउट करेंगे। लेट अस कंसीडर दैट द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज ए, इसका एरिया क्या है, ए है ना। तो ये वॉल्यूम कितना होगा, इज एरिया इनटू हाइट दैट इज लेंथ, ये इसका वॉल्यूम होगा, है कि नहीं। व्हाट इज स्मॉल एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे कैपिटल एन चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज एन, टोटल नंबर ऑफ electrons that will pass, cross section है ना, what is n, it will pass to, ये तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, जो यहाँ पे थे वो अभी यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे वो सभी यहाँ से पास हुए होंगे कि नहीं, हाँ हुए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ, यहाँ पे फील्ड दे रहा हूँ।
आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे फील्ड दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स बाहर मिल रहे हैं, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होता है क्यों? क्योंकि हमारे इतने ड्यूरेशन में इतने चार्जेस बाहर हो गए। तो चार्जेस कितने हैं यहाँ पे? जो कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे आ गए। इसका मतलब ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम में जो कुछ बाहर आ गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे सरफेस पे हमने देखा n, तो n इलेक्ट्रॉन्स ने वॉल्यूम कवर कर लिया है ना। तो हम क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that has actually passed here is what all the electrons in this volume. ये तभी इधर के सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। एक बात समझ में? तो आपको बेसिकली क्या करना है, चार्ज निकालते वक्त जो कुछ ये क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर है ना वो गिनना है आपको। तो आपको क्या गिनना पड़ेगा? ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, n is what? n is actually the total number of electrons. Actually, sorry, I just said before that n is only electron this surface, but n is actually the total number of electrons that we are under study. जो कुछ चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही हम बात कर रहे हैं। गिवन टाइम में पूरे सब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो n क्या होगा? n will be equals to what? n will be equals to small n into v। क्या लिखना है आपको? n is equals to what? Small n into v। क्योंकि ये क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम पे इतना है। तो गिवन वॉल्यूम पे यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? टोटल n मिलेगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ। तो कैपिटल एल की इक्वेशन क्या होना? n इंटू ए इंटू एल। आई बात समझ में? यस, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे n की जगह ये लिख लेते हैं, स्मॉल n a इंटू एल, और ये ई यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा टी इज द टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये तक क्लियर है ना? यस। ओके, और देखो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक टाइम भी कितना रहेगा? दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा टी विल बी आल्सो इक्वल्स टू व्हाट? नाउ डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट हैज बिकम द, यहाँ से यहाँ तक कोलाइड होते होते आएगा ना। इसका मतलब ये कितना टाइम लगेगा? कि देखिए टुडे टाउ टाइम, टाउ एवरेज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टाउ लिख सकते हैं। इट हैज बिकम दिस। आई बात समझ में? यस। अभी हम ये देखो यहाँ पे व्हाट इज दिस स्टूडेंट? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट वी डी। तो आप हाँ यहाँ पे बहुत बढ़िया से लिख सकते हो आप, दैट आई इक्वल्स टू एन ई, ये क्या है? वी डी, और ये है ए। और इसको बहुत अच्छे से बॉक्स करना है। और उसको बोलना है नेवड़ा। आपको नेवड़ा पता है? नेवड़ा, नेवड़ा कुछ होता है क्या? कुछ वर्ड नहीं होता है। नेवड़ा होता है फ्लावर्स, है ना। तो ऐसे याद करो, करंट क्या होता है? नेवड़ा। फार्मूला याद रहेगा आपको, ठीक है? आई इक्वल्स टू नेवड़ा। The spring constant is worn out, that is why the what you can say this camera fell down। शायद ये अभी गिरेगा नहीं, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, बात समझ में आई? आई इक्वल्स टू नेवड़ा। यस, बहुत अच्छा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाकी सब पार्ट आपको समझ में आया ना? मतलब करंट की वैल्यू ये नेवड़ा से गियर होते हैं, इसके ऊपर से हम प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फास्ट फास्ट फास्ट।
और जो हम करंट डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे ना कि फॉर गिवन परपेंडिकुलर एरिया है ना, जो अगर मैंने क्रॉस सेक्शन ऐसे पकड़ा तो ये एरिया वेक्टर होगा यहाँ से ds, और यहाँ पे से अगर करंट जा रहा है तो j बार अमाउंट ऑफ क्लोजनेस है. व्हाट इज j? क्लोजनेस ऑफ करंट इन परपेंडिकुलर एरिया. ये एरिया है परपेंडिकुलर, उसके अंदर कितने क्लोज इलेक्ट्रॉन है, इसकी करंट डेंसिटी बोलते हैं ना. तो J इंटू डी एस, तो J बार इंटू डी एस बार. डी एस बार मतलब क्या? एरिया वेक्टर है, ऐसे ही है. हाँ, तो इसकी जो करंट ऐसे था, अगर यही J बार ऐसे है क्लोजनेस, ये J बार ऐसे है क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका जो एरिया वेक्टर वो ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो J बार इंटू ए बार, ये दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो पूरा ऐड नहीं होगे ना वेक्टर. इसका ये वेक्टर यहाँ पे है और ये वेक्टर यहाँ पे, तो उसका दोनों साथ साथ नहीं है, तो साथ साथ जो इतना उनका आंसर अच्छा ज़्यादा आ सकेगा उतना उनका उतना अच्छा करंट आता है. तो ये ज़्यादा अच्छा तब होगा जब कॉस जीरो होगा, तो कॉस थीटा टाइम्स ये थीटा एंगल पे होता है. तो J बार डॉट एस बार इज योर नथिंग बट करंट, है ना. तो ये करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो करंट डेंसिटी के लिए में भी इसका आंसर आपको चाहिए, है ना. तो यही फॉर्मूला यहाँ पे I अपॉन ए अगर आप करोगे यू गेट J. व्हाट इज J? ये I यहाँ पे आ गया, है ना, ये I यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे? NeVd बचा, और NeVd क्या होता है? I अपॉन ए होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी का और एक फॉर्मूला क्या है? NeVd है, NeVd. यही बात समझ में, यही बात समझ में. ये है और एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. तो आप क्या लिख सकते हो? करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिटन एज NeVd. नेव्ड. करंट डेंसिटी इज ओनली नेव्ड, नॉट नेव्डा. नेव्डा इज योर करंट. Okay, isn't it funny to remember things in this name? Yes, when you think it is funny, you will not forget, है ना. इसीलिए हम इसको एसोसिएट करते हैं ऐसे. आई बात समझ में? क्लियर है? यस. सो वी हैव करंट डेंसिटी. अभी आपको VD है ना, VD यहाँ पे कुछ दिखा है. VD मतलब क्या? ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे, है ना. VD इक्वल्स टू दिस वैल्यू, है ना. तो ये VD की वैल्यू अगर मैं फिर से यहाँ पे रखूँ ना, ये लिख लिया ना आपने. हाँ, अभी पॉज करके इतना लिख लिया होगा, तो अभी लिख. सो नाउ फाइनली वी हैव J बार इक्वल्स NE, और VD की जगह मैं क्या लिखता हूँ? वो हाफ EE टाउ बाय M, और ये J को ऐसे लिख के फिर से E को सेपरेट करूँगा और बाकी को फिर से K नाम दूंगा. तो E को सेपरेट किया तो क्या होता है? स्मॉल n E स्क्वायर टाउ बाय M. ये जो कुछ कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टिविटी. ओके, आई बात समझ में? वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ बाय M. यस स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में. तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का आपने फॉर्मूला देखा है इन 10th स्टैंडर्ड. इज दैट R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. ओके, 10th स्टैंडर्ड, है ना, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, है ना. Also, we were told in class 10 that 1 upon resistivity is called as what? Conductivity. है ना, ये भी हमको बताया गया था. तो अब हम क्या करोगे? ये रब कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा हमें समझे क्योंकि मैंने रब कर लिया जल्दी. ओके, 1 बाय रो इज सिग्मा, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना. तो हम क्या करना है? हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू पता चली क्या है? इज नथिंग बट व्हाट?
वन बाय रो। हमने पढ़ा है जो रेजिस्टिविटी होती है उसका उल्टा करने के बाद कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब क्या, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि दिए गए हुए इतने एरिया में पर यूनिट एरिया इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लेंथ, ओके, व्हाट इज दैट रो। रो का हमने अगर स्टडी किया यहाँ से तो क्या होता है रो, व्हाट इज रो, RA/L है ना, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, है ना, इतना रेजिस्टेंस हो रहा है उतने ज़्यादा एरिया में, वो प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना। वन अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो वो कंडक्टिविटी का हमने इक्वेशन यहाँ पे बोला है कि ऐसा है, तो कंडक्टिविटी हमने ऐसे डिफाइन किया है। तो कंडक्टिविटी क्या है, NE² τ/2 है ना यहाँ पे, 2b/2m है कि नहीं। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी विल इक्वल्स टू 2m/NE² τ। आई बात समझ में, यस। तो अगर ये इक्वेशन फिर से यहाँ से आपने लिखा है तो देखो ये क्या आता है, J बार इक्वल्स 1/ρ, क्योंकि कंडक्टिविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/ρ इंटू E, है ना। E बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे लिखा E बार इक्वल्स ρ इंटू J बार। आई बात समझ में। दिस इज एक्चुअली द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ V इक्वल्स टू IR। कैसे, देखो E को मैं अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, कहाँ से, डिस्टेंस से, कहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस से, तो E इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू सिग्मा इंटू J इंटू डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है, तो E इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, J मतलब क्या होता है, I/A, है ना, ऐसा ना, ये डिस्टेंस है। सो व्हाट इज दिस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या रहता है, ओहम मीटर रहता है ना। रेजिस्टेंस ऑन अ गिवन एरिया, ऑन अ गिवन लेंथ, एरिया वेक्टर पर लेंथ अपॉन ये क्या, एरिया अपॉन डी क्या होता है, मीटर होता है ना, मीटर मीटर कैंसिल इनटू I इनटू V। व्हाट इज दैट, इक्वल्स टू I इनटू ρ इज R। इट इज नथिंग बट व्हाट, माइक्रोस्कोप। यहाँ पे डी और डी कैंसिल किया, लगाया तो ये आ रहा है, तो डी और डी मैंने सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि डिस्टेंस मेरे को बहुत स्मॉल रखना है। तो अगर ये मैंने बहुत स्मॉल डिस्टेंस लिखा तो ये जो डिस्टेंस है तो बढ़ाया, तो अगर डिस्टेंस बहुत लिया तो हमको V इक्वल्स टू IR आ रहा है, मतलब ओम्स लॉ आ रहा है। और डी बहुत स्मॉल लिया यानी डी को निगलेक्ट किया, इग्नोर किया फॉर वेरी इन्फिनिटेसिमल लेंथ, तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द रिवर्स इफेक्ट इफ यू टेक डिस्टेंस एज नेग्लिजिबल फ्रॉम द ओम्स लॉ, व्हिच इज नथिंग बट द सेम। इसी को हमको लेकर अगर ये डायमेंशनली आ रहा है तो यू कैन से दैट ओम्स लॉ कैन बी फॉर नेग्लिजिबल लेंथ इज इक्वल टू दिस। इसके लिए इसको लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं लोग, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। ये वही है पर माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। यस, ये लेंथ बहुत कंडीशनली इनकरेक्ट लेगा। तो बहुत मज़ा आया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से नोट्स लिखने हैं और आपको दिखाने हैं। आई बात समझ में। तो ये है आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ पढ़ा, करंट का इंट्रोडक्शन देखा कि करंट पानी की तरह अगर रहेगा तो क्या फ्लो होता है ना। इट इज़ ऑल टुडे वी हैव लर्न वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। कल हम रेजिस्टर्स की कलर कोड दिखेंगे और माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी देखेंगे। तो आपको आज का समरी क्या है बोलो, आज का क्या है हमने समरी में लिखा है, इट इज नथिंग बट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। करंट की इंट्रोडक्शन है, करंट क्या होता है,
एक वायर में माइक्रोस्कोपी जूम करके देखा कि एक्चुअली करंट क्या होता है। अब तो पता चल रहा है शॉक लगा हो गया करंट, नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को जूम इन करके देखा कि कैसे 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 छोटे छोटे पार्ट्स। तो 1-1.5 घंटा बहुत अच्छा गया आपको, है ना। तो रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सेव दिस लेक्चर इन योर ड्राइव, आपको कभी भी याद फ्यूचर में यूज होगा, अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो 10th स्टैंडर्ड का हमने रेफरेंस लिया ना वो थोड़ा लेंदी था, ठीक है, तो आपको लगेगा कुछ बोर लग रहा है, तो नहीं स्टूडेंट्स, जस्ट गो थ्रू दैट, दैट वाज जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड दैट वाज हेल्पिंग यू टू लर्न दैट वाटर एनोलॉजी है। पानी के साथ हम स्टडी करते हैं, हमको जल्दी इसका इफेक्ट स्टडी करने के लिए आसान है। वाटर एनोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।